عزیزان ملت اسلامیہ، شاعر مشرق علامہ اقبال کا شعر ہے، تو نہ مٹ جائے گا ایراں کے مٹ جانے سے، نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، اور ہے عیاں علوم سے تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ کہ موجودہ جو جنگ چل رہی ہے اسرائیل اور ایران کے درمیان، وہ صرف دو ملکوں کے مابین کوئی جنگ نہیں ہے، بلکہ حق اور باطل کے درمیان کی جنگ ہے۔ پوری دنیا اسی نظر سے اس جنگ کو دیکھ رہی ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے، کسی ملک کا کسی دوسرے ملک سے نہیں، کسی قوم کا کسی دوسرے قوم سے نہیں، بلکہ کھلی آنکھوں سے ہر کوئی دیکھ سکتا ہے کہ یہ حق کی لڑائی ہے باطل کے ساتھ، یہ سچ کی لڑائی ہے جھوٹ کے ساتھ، یہ وفاداری کی لڑائی ہے بے وفائی کے ساتھ، یہ مظلوموں کی لڑائی ہے ظالموں کے ساتھ، اور انشاءاللہ فتح اہل حق کو ہر زمانے میں نصیب ہوا کرتا ہے، چاہے وہ میدان کربلا ہو۔ ظاہری طور پر شکست نظر آ رہی ہے، لیکن دنیا جانتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام سر کٹا کر بھی فتح یاب ہوئے، یزید جیت کر بھی ہار گیا۔ یہی معاملہ اہل حق کا رہتا ہے، اگر وہ شکست کھا بھی گئے تو معاملہ اسلام کا ایسا ہے کہ جہاں میں اہل ایمان سورج خورشید جیتے ہیں، کہ ستاروں اور سورج کی طرح جیتے ہیں ایمان والے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ تو شاعر مشرق کا یہ شعر اسی تناظر میں توجہ کریں کہ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے۔ خدا نہ خواستہ ایسا ہوا کہ ایران کو شکست نصیب ہو گئی، اللہ نہ کرے، اللہ ان کو غلبہ عطا فرمائے، تو شاعر مشرق نے کہا تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے۔ یعنی جو اسلام کا جو شراب ہے، اللہ سے جو عاشقی ہے، رسول اللہ کی محبت ہے، اور شریعت اسلامیہ کی پاکیزہ جو محبت ہے، وہ کبھی نہیں مٹ سکتی، اور اس کے لیے تاریخ گواہ ہے، ہسٹری اس پر شاہد ہے کہ کس طرح سے بغداد میں عباسی سلطنت، اور گویا کہ اسلامی ممالک کا مرکز بغداد، ہلاکو خان نے اس کو برباد کرنے کی کوشش کیا، ایک حد تک برباد کر دیا۔ دجلہ فرات کی تمام پانی اور دریا بالکل کتابوں سے اور خون سے، مسلمانوں کی جو ذخیر کتابیں تھی اس سے، اور مسلمانوں کی جو قیمتی خون تھے اس سے دجلہ فرات بالکل اپنی اصلی جو ہے رنگت کو کھو چکا تھا۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ اسلام تو نہیں مٹا، مذہب اسلام کو کوئی آنچ نہیں آیا۔ یہ شروع سے یہی دستور رہا ہے کہ اسلام جو مذہب ہے وہ اس طرح سے ہے جس طرح سے ایک پاکیزہ مشروب، جس کو کوئی برتن سے تعلق نہیں ہے، جہاں بھی رکھا جائے گا وہ وہاں پر رہ جائے گا۔ کسی ایک برتن کے ٹوٹ جانے سے اسلام کا جو مشروب ہے، اسلام کا جو یہ عشق و محبت کا شراب ہے، یہ ختم نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حق اور باطل کی لڑائی میں حق کو غلبہ نصیب کرے، اس جھوٹ اور سچ کی لڑائی میں جھوٹ مغلوبیت حاصل ہو اور سچ کو غلبہ حاصل ہو۔ ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں، یہ سوچنے کی بات ہے۔ ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے، یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ ہم اپنا کیا یوگدان دے سکتے ہیں، یہ ایک سوچ کا پہلو ہے کہ کیا بس نیوز چینل سے جو خبر آ رہی ہے
उस पर निगाहें टिकाए रखें या फिर हम कुछ करें, तो हमको भी कुछ ना कुछ करना है। इसलिए कि दुनिया में कोई खित्ता ऐसा नहीं है जहां पर यहूदी प्रोडक्ट मौसूल नहीं, पहुंचा हुआ नहीं है। और जिस तरह से जहां जहां उसके प्रोडक्ट्स पहुंचे हुए हैं, उसी तरह से वहां वहां उसके अपराध भी पहुंचे हुए हैं। हम गफलत में ना रहें कि हिंदुस्तान में इसराइली नहीं है। 1999 में मुल्क के बहुत बड़े आलिम दीन ने कहा, मुसलमान इस मुल्क में बारूद के ढेर पर हैं, 800 इसराइली दिल्ली में आबाद हो चुके हैं। 1999 में यह बात कही गई। आज 25 साल गुजर चुके हैं, कितनी आबादी इनकी आगे बढ़ चुकी होगी अंदाजा लगा सकते हैं। तो हमें ये काम करना है कि हम, जो अल्लामा इकबाल ने कहा, उसके मिज़ाक ना बने। कहा कि हाथ बेजोर हैं, इल्हाद से दिल खूबर है। हाथ में दम नहीं, हाथ में ताकत नहीं, बाजू में ताकत नहीं, तो बाजू मजबूत किए जाए, दिमाग मजबूत किए जाए, फिक्र को मजबूती दिलाई जाए और आज़ाओ जवारिह को भी मजबूत किए जाए, ताकि मैदान जिहाद का जब कोई मामला आए तो हम अपनी कमजोरी और जिस्मानी नातवानाई की वजह से पीछे ना रह जाएं। तो अल्लामा इकबाल ने कहा, हाथ बेजोर हैं, दिल इल्हाद से खूगर। दिल को अल्लाह तबारक व तआला के यकीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के शराब से मामूर करें और अपनी शख्सियत को, अपने आप को इस्लामी मिजाज में ढालें, अपने आप को, अपने मुआशरे को, अपनी सोसाइटी को इस्लामी तालीमात से आगाह करें, अपने आप को, अपने अहल वयाल को, अपने बाल बच्चों को इस्लामी मालूमात फराहम करें, चाहे वो मकतब की शक्ल में हो, मकतबों में भेज कर हो, चाहे ऐसे स्कूल कॉलेजेस को इख्तियार करके हो जहां पर दीनी तालीम और दीनियात का कोर्स हो, चाहे वो घर पर ट्यूशन की शक्ल में हो, चाहे वो मस्जिद में किसी तरह से पढ़ने पढ़ाने की शक्ल में हो। अपने आने वाली नस्ल को इस्लामी मिजाज और इस्लामी रिवायात और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दर्ज दे। अगर ऐसा हम करेंगे तो वाकई हम कुछ कर रहे हैं, और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, गफलत की जिंदगी गुजारते हैं, हाथ यूं ही बेजोर हो रहते हैं, दिल यूं ही इल्हाद से खूबर रहते हैं, दिल में अल्लाह का इनकार, जबान से अल्लाह अल्लाह कह रहे हैं, दिल में अल्लाह का वो यकीन नहीं, दिल में अल्लाह के रसूल से वो मोहब्बत नहीं, जबान से दावा कर रहे हैं, हमारे आमाल, हमारी एक्टिविटीज ऐसे नहीं हैं जिससे पता चले कि ये रसूलुल्लाह का शैदाई है, अल्लाह के रसूल का से मोहब्बत करने वाला है, इस्लामी शरीयत का पासदार है और शरीयत इस्लामी का मुहाफिज है। अगर हमारी जात से ऐसा पता नहीं चल रहा है तो वाकई हम गफलत में हैं। और जरूरत इस बात की है कि हम अपने दिल को अल्लाह के रसूल की मोहब्बत से, अल्लाह के डर से, और अपने हाथ को शरीयत इस्लामी के मुताबिक जज्बे जिहाद के लिए और जिहाद के लिए, मैदान जिहाद के लिए अपने आप को मजबूत करें। उसके लिए फालतू वक्त जाया ना किया जाए। यहूदी कौम का मामला यह है कि वो कभी भी अपना वक्त फालतू जाया नहीं करते। यही वजह है कि आज तादाद में कम है, फिर भी वो करोड़ों इस मुसलमानों पर भारी। वजह क्या है? उनके एक एक लम्हात कीमती, एक एक मिनट वो गिनते हैं, एक एक घंटे को वो शुमार करते हैं। हमारा और आपका मामला यह है कि हम घंटों वक्त बर्बाद कर देते हैं। और किसी बड़े मुफक्किर ने कहा कि अल वक्त हुवल हयात, वक्त ही जिंदगी, फला तक़्तुलू, वक्त को जाया ना करो, वक्त को बर्बाद ना करो। अगर कोई वक्त को बर्बाद कर रहा है, कोई कौम
कोई इंसान, कोई व्यक्ति, तो वो वक्त को नहीं अपने आप को बर्बाद। और इस मुसलमानों की जो एक अहम खूबी, खुद एक यहूदी की ज़बानी मैंने कल एक वीडियो में सुना कि एक यहूदी आलिम कह रहा है कि इस्माइली यानी मुसलमानों का जो नस्ब मिलता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नस्ब मिलता है इस्माइल अलैहिस्सलाम, यहूदी अपने आप को बनी इसराइल यानी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की तरफ निस्बत करते हैं, तो उनका आलिम दीन कह रहा है कि इस्माइली मुसलमान यानी रसूलुल्लाह का उम्मती वो हमसे कई गुना ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि उनके पास नमाज है। साफ लफ्जों में कह रहा है कि मुसलमान के पास अल्लाह से हम कलाम होने का एक जरिया है, उनके पास नमाज जैसी जो है अहम जो है इबादत है, जिसके जरिए वो 5 वक्त अल्लाह के दरबार में आकर अपनी रूहानी तरक्की को बढ़ाते हैं। लिहाजा हम यहूदी या हमारे नौजवान मुसलमानों का जाहिरी फौजों से मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए कि उनके पास एक खास रूहानी ताकत है नमाज के जरिए। और कहा कि अगर उनसे हमें मुकाबला करना है, या तो हम उनकी तरह बन जाएं, उनसे बेहतर नमाजें अदा करने वाले बन जाएं, उनसे बेहतर अल्लाह पर यकीन रखने वाले बन जाएं, उनसे बेहतर अपने मिशन के लिए जान देने और जान लेने वाले बन जाएं, तब जाकर हमारा इस्माइली यानी मुसलमानों से मुकाबला बराबर का होगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम मुसलमानों से जाहिरी टैंक और तोपों के जरिए और जाहिरी मिसाइलों के जरिए और जाहिरी फौजों के जरिए जीत नहीं सकते। तो यहूदी तो अपने रब को भूल चुके हैं, मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात को भूल चुके हैं, उनकी किताबों में सही सही तालीमात भी नहीं बची है, सब उल्टी सीधी तालीमात बची है। सही तालीमात को उनके बड़े बड़े पादरियों ने छुपा दिया, तो मुसलमान जैसी वो रूहानी ताकत को पैदा कर नहीं सकते हैं। लिहाजा उसके मुकाबले में उल्टा चाल वो चल रहे हैं, मुसलमानों को नमाजों से दूर किया जाए, इसकी प्लानिंग कर रहे हैं। ऐसे ऐसे गेम्स वो इजाद कर रहे हैं, ऐसे ऐसे खुराफात वो इजाद कर रहे हैं, ऐसे ऐसी दुनियावी लहवो लईब की चीजें, खेल तमाशे की चीजें और मनोरंजन की चीजें और इंजॉय की चीजें वो इजाद कर रहे हैं, जिससे मुसलमान की तरह वो ना बन सके, मुसलमान उनकी तरह बन जाए और अपनी रूहानी तरक्की को ना बढ़ा सके और हमसे ज्यादा वो कमतर हो जाए। तो शायर ने कहा, बुझी इश्क की आग तो अंधेर है, बुझी इश्क की आग तो अंधेर है, मुसलमान नहीं खाक का ढेर है। तो अगर ये सूरत हाल रही, हमारी मस्जिदों में आबादी नहीं बढ़ी, हमारे नौजवानों ने अपने वक्त को जाया किया, हमारे लोगों ने अगर अपनी रूहानी तरक्की को ना बढ़ाया और अपनी ईमानी ताकत को ना बढ़ाया और अपने आप को रूहानी एतबार से कम डेवलप नहीं किया, तो दुनियावी एतबार से हम उनके जरा भी मद्दे मुकाबले टेक्नोलॉजी और साइंस और इल्म और महारत जो गए ने असलहे में उनको है, हमें हासिल नहीं। हमारा उनका मुकाबला, हम उनके पल्ले में अगर भारी हो सकते हैं तो यही रूहानी ताकत के जरिए भारी हो सकते हैं, और उसका सबसे अहम जरिया नमाज है। ये कोई आलिम, कोई मुसलमान, कोई मुफ्ती, कोई आलिम का बयान नहीं, बल्कि एक यहूदी आलिम का बयान। तो जान रहा है कि अगर किसी के पास आज हक की ताकत है, अगर किसी के पास अगर सही और महफूज शरीयत है और जिंदगी गुजारने का सही तरीका है, तो किसी कौम के पास नहीं है। अगर किसी के पास रूहानी तरक्की है तो किसी कौम को हासिल नहीं है। अगर किसी कौम में जो है ईमान बचा हुआ है तो किसी कौम में बाकी नहीं है सिवाय मुसलमान। आज इसी ईमान की बुनियाद पर तो दुश्मन हमारे दुश्मन है, आज इसी ईमान की बुनियाद पर तो लोग हमें मारते हैं, आज इसी इस्लाम की बुनियाद पर तो लोग हमें टारगेट कर रहे हैं, और हम हैं कि उसी में कच्चे हैं। और मामला ये होगा, इसी कच्चे बन के रहेंगे तो मामला ये होगा कि दुनिया में हम इसलिए टारगेट किए जा रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, और आखिरत में हम इसलिए फरिश्तों के टारगेट बनेंगे क्योंकि हम सही मुसलमान हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि
की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। यानी जिस कलम से या जिस तख्ती से तकदीर लिखी जाती है, किस्मत लिखी जाती है, कौमों को की तरक्की लिखी जाती है, और जो है हक का गलबा लिखा जाता है, और हक का की फतहयाबी लिखी जाती है, और सच की जीत लिखी जाती है, झूठ का हार लिखा जाता है, वो सब आपका हो जाएगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा, उनकी शरीयत से मोहब्बत और उनसे सच्चा इश्क करना होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें सच्चा और पक्का मुसलमान बनाए, कहने सुनने ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना